Hello student, this is the second part of the history chapter 11, the nationalist movement. In the first video we discuss about the establishment of Congress and the aim of the Congress. In today's video we discuss about the other important fact of this chapter. After the established Congress, the Congress first method to get more than more right from the British government. there है जैसे the rise of the extremist. The moderate were able to achieve the some reform and to create base of our national struggle during the first 2 years. The British sponsored to its activity. However, the increase the demands of the Indian National Congress, the British activity made the suspension of the National Congress. As the year went by, number of leaders started feeling that the British government was only interested to in exploitation. यानी कहने का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टार्टिंग में एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का राइट मांगना ब्रिटिश गवर्नमेंट से. स्टार्टिंग 2 इयर्स में तो कांग्रेस कुछ सफल भी होती है, कुछ वो अचीवमेंट भी होता है उनका, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात को सुनती भी है. पर जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इग्नोर करती है कांग्रेस को डिमांड को, और आगे जाके जो लीडर्स होते हैं उनको ये लगता है कि ब्रिटिश जो है सिर्फ इंडियंस का एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं. However, the moderates failed to achieve their goal. The British government did not cooperate with them. It paved the rise of the extremists in the Congress after 1905. The famous leader who led the extremist section of the Congress were Lala Lajpat Rai from Punjab, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल फॉर बंगाल. यानी देखा जाए जब कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे जब वो सक्सेस नहीं होते हैं तो कांग्रेस में जो अदर लीडर्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे, जिसमें मेन नाम थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. देन 3 लीडर्स ऑल्सो नोन एज द लाल बाल एंड पाल. यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट होता है 1885 में और टू 1905 तक, दिस इज द कॉल ऑफ द मॉडरेट एज, एंड देन आफ्टर 1905 टू दिस एज कॉल द एक्सट्रीमिस्ट एज. देन डिस्कस अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट्स. जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था उसको स्टार्ट करने में डिफरेंट कॉजेस थे, बस मेन कॉजेस था पार्टीशन ऑफ बंगाल. इन 1905 लॉर्ड कॉर्जन ऑर्डर टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल. द वेस्ट Bengal had the western Bengal, Bihar and Odisha, and one side the other part that had the East Bengal and Assam. This reason given for the order partition was that was too big and provision the administrated. यानी देखा जाए बंगाल जो था सबसे बड़ा वो उस समय का प्रोविज़न था, और वहाँ लॉर्ड कॉर्जन ने 1905 में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसका मेन कॉजेज रहता है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. बंगाल एट द टाइम वाज द कंसिडर्ड द हब ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म. और क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल जो था वो इंडियन नेशनलिज्म का हब था. ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल की यूनिटी को तोड़ना चाहती थी, जिससे कि नेशनल मूवमेंट था उसकी जो ग्रोथ है उसको रोका जा सके. The real motive was to break growing the solidarity of Bengal nationalism. By doing this, they also started to achieve the goal of dividing the Hindu and Muslim also. इसके साथ साथ वो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको भी वो तोड़ना चाहते थे. But against the dividation of Bengal, the people of Bengal were greatly agitated by the partition of Bengal. They did not agree with the Lord Curzon division was made purely on administrative ground. They saw through the aim of the British break the unity of people, Bengal people and communal lines, and thus weaken the nationalist movement. This provoked the agitation and angry reaction of Bengali people. A movement launched in partition it led by the both extremist and moderate leader. The day of the partition was observed as day of mourning of all Bengal. बंगाल्स के जो पार्टीशन होता है तो उसके अगेंस्ट जो वहाँ के लोग हैं एक तरह से हो जाते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया था उसके अगेंस्ट लार्ज मूवमेंट स्टार्ट होता है. फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन call back the order of dividation of Bengal. But in 1907, the Surat session Congress split up and the moderates started to work separately. देखा जाए बंगाल डिवाइडेशन जो था उससे नेशनल मूवमेंट को एक तरह से और ज़्यादा
पावर मिलता है, ये मूवमेंट और ग्रोथ करता है। बट एट लास्ट फाइनली 1907 में मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कांग्रेस जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है 1907 सूरत सेशन में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was formed in 1906 under the leadership of Aga Khan, the Nawab Salimullah of Dhaka. It was some the extent fallout the result of the policy of divided and rule following by the British. Then student, जब बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा था, इसी समय ढाका में जो मुस्लिम लीडर थे, स्पेशली लीडर ऑफ आगा खां एंड द नवाब समीउल्लाह खां ऑफ ढाका इन 1906 फॉर्म मुस्लिम लीग। और ये जो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती है मुस्लिम और हिंदू को जो यूनिटी है उसको तोड़ने में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग वाज द प्रमोट लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रिटिश एंड टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ द मुस्लिम। मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्ट जो था, जो एम था, वो मुस्लिम्स की जो भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। The League supported the partition of Bengal and also asked for the separate electoral for the Muslim. The government accessed to this demand, and in 1909 Morley Minto Reform or the Government of India Act of 1909 was passed law. जैसे स्टूडेंट मैंने पहले ही कहा कि मुस्लिम लीग का जो मेन एम था मुस्लिम्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, उनका उन्होंने साथ साथ जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसका भी उन्होंने सपोर्ट किया, साथ साथ वो अलग से सेपरेट इलेक्ट्रॉल मांग रहे थे मुस्लिमों के लिए, जिस राइट को, जिस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से एक नया एक्ट बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। द लखनऊ पैक्ट। The Lucknow Pact was signed in 1916 Lucknow. Two important developments took place in this session. Moderate extremists decided to work together against the British rule. Congress and Muslim League united in their fight against British, their demand for स्वराज। यानी देखा जाए तो इन 1960 लखनऊ पैक्ट जो होता है, यानी लखनऊ सेशंस में कांग्रेस एंड के जो दो पार्ट हो जाते थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम, वो एक साथ हो जाते हैं और वो एक डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन था कि फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ कांग्रेस जॉइन टुगेदर एंड दे स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर पूर्ण स्वराज, यानी फॉर इंडिपेंडेंट। Then student, we already have discussed about the date of 1885 to 1916, यानी हम लोगों ने एक तरह से स्टार्टिंग जो फेज था इंडियन जो मूवमेंट होता है फ्रीडम मूवमेंट, उसके स्टार्टिंग फेज 1885 टू 1960 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कि इस्टेब्लिश्ड ऑफ कांग्रेस, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग, डिवाइडेशन ऑफ कांग्रेस एंड एज वेल एज द Lucknow session in 1916. This time frame, I again repeat, the 1885 to 1916, this time frame also called the first part of the Indian freedom movement. Next phase we discuss about the Gandhiji and the other three main movement. Then student, after the 1916 and till independent, this time frame also called the Gandhian age. यानी देखा जाए गांधी जी के आने के बाद जब वो मूवमेंट को लीड करते हैं तो उसके टाइम फ्रेम यानी इंडिपेंडेंट तक का टाइम फ्रेम हम लोग गांधीयन एज के नाम से जानते हैं। इसको सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देन लेट अस स्टार्ट द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। द अराइवल ऑफ गांधी जी। गांधी जी इज considered to be the most important leader who spearheaded the national movement. His contribution to the national movement was that made the Indian national movement mass movement. After spending about 20 years in South Africa fighting against the discriminatory practice of South Africa government in peaceful manner, यानी गांधी जी जो 20 years तक साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वो इंडिया वापस आते हैं इन 1915 में, और इसी से स्टार्ट होता है गांधीयन एज का। गांधी जी यानी महात्मा गांधी, वी नो दैट द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी जब वापस आते हैं तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाते हैं।
The Gandhiji came back to India in 1915. In the first phase of his life, he established an ashram on the river bank of Sabarmati, Gujarat, joined the Indian National Congress. In 1906, the lead three satyagraha at Champaran in Bihar, Ahmedabad and Kheda in Gujarat, and was able to win support of the people. यानी देखा जाए गांधी जी जब 1915 में वापस आते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले वो आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं banks of river Sabarmati in Gujarat. Then after he also joined in 1916 Indian National Congress and also lead the three satyagraha movement. Three satyagraha movements in Champaran, Bihar, Ahmedabad and Kheda in Gujarat. Then after some time the world started the first world war. यानी कुछ समय बाद ही 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है. एंड सेम टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट द start make a new act, the Government of India Act of 1919. यानी दे रहा है during the first world war the British government has announced that after the war Indian will be associated with the functioning of government. So after the war they announced the Government of India Act of 1919. यानी देखा जाए जब फर्स्ट वार स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया कानून बनाती है और इसे डिक्लेयर करती है कि वार के बाद इंडियंस जो है अपने गवर्नमेंट बनाएंगे और उसमें अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं. But Mahatma Gandhi refused this act, the Rowlatt Act in 1919, and also started the Satyagraha movement against this Rowlatt Act. यानी महात्मा गांधी इस जो एक्ट था इसका विरोध करते हैं और लोगों से एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कहते हैं. एंड दे ऑल्सो कॉज द स्टार्टेड मूवमेंट्स इन होल नेशन. द पीपुल बॉयकट द रॉलेट एक्ट. जलियांवाला बाग मैसकर. यानी देखा जाए गांधी जी कॉल्ड ए नेशन वाइड नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू रिवोल्ट against the Rowlatt Act. He declared that April 6, 1919 will be observed as the day of strike. The people responded it very greatly. All over the Indian demonstration were held and the government used brutal method to suppress them. यानी देखा जाए गांधी जी इस तरह से रॉयल एक्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिस 6 अप्रैल 1909 को, और लोगों से कहते हैं कि इस स्पेसिफिक डेज को ये प्रोटेस्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट का. But British government started suppress of this movement. In Punjab, a large people meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against this arrest of two popular leaders, Dr. Saifuddin and Dr. Satyapal. The Jallianwala Bagh in the enclosed of three sides that by buildings and had only one narrow entrance exit. A large crowded by sitting there peacefully. यानी देखा जाए इसी समय एक इंसिडेंट होता है पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में. वहाँ पर लोग गैदर करते हैं दो उनके जो लीडर होते हैं लोकल लीडर्स के अरेस्टर्स के अगेंस्ट. और ये जो प्लेस था वहाँ पर इंट्रेंस एक ही था, यानी नैरो इंट्रेंस था लोगों के अंदर आने और बाहर जाने का. पीपुल एट जलियांवाला बाग दे डेमोस्ट्रेट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पीसफुली, बट इन सेम टाइम व्हेन द ऑल ऑफ सडन General Dyer surrounded the park and the order to exit appoint or order to troops open till their ammunition was exhausted. यानी देखा जाए तो उस समय के जो जनरल डायर थे वहाँ के वो एक तरह से जलियांवाला बाग को ऑर्डर देते हैं कि चारों तरफ से घेर लिया जाए और लोगों के ऊपर फायर किया जाए. 1000 were killed and wounded. 1000 लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं. अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट all over India started movements against the British government, and in same time the Mahatma Gandhi also started a new movement, the Khilafat and the non-cooperation movement. Then later discuss about the non-cooperation movement. Khilafat and the non-cooperation movement in 1920. In 1920, Gandhiji started a non-cooperation movement against the British. The first अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द पीपुल पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. यानी देखा जाए तो इसके डिफरेंट कॉजेस थे. तो पहले हम लोग इसके कॉजेस को देखते हैं. देयर आर फर्स्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द पीपुल पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. यानी जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक मेन कॉजेस था. नेक्स्ट टू डिमांड फॉर स्वराज, यानी स्वराज के लिए उनका मेन डिमांड था.
अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम बाय द ब्रिटिश, खिलाफत रॉन्ग्स। यानी देखा जाए जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनके मूवमेंट को सपोर्ट करना भी एक तरह से खिलाफत मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम था। खिलाफत agitation was started by two leaders, namely Muhammad Ali and the Shaukat Ali. Muslim considered the rulers of Turkey as Khalifa. He was regarded as the religious sage. In 1918, the British assured the Muslims that after the war, Turkey will be treated with sympathy. On the contrary, after the war, part of the Turkish empire went into the hand of France, England, and Greek, and the Sultan was deprived of this power, which angered the Muslim and the two joined नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी देखा जाए खिलाफत मूवमेंट का एक मेन कॉजेस ये था कि उस इंडिया में जो दो लीडर थे शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। इसके पीछे कारण ये था कि तुर्की के जो किंग थे वो खलीफा के नाम से जानते थे और उनको होल जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको अपना हेड मानते थे। इन 1918 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो ब्रिटिश जो था उन्होंने एक तरह से प्रॉमिस किया था कि आफ्टर द वार उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, यानी गुड ट्रीट किया जाएगा। बट वार के एंड होने के बाद तुर्की जो एम्पायर था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और ग्रीक, फ्रांस और इंग्लैंड उसको कंट्रोल कर लेते हैं और सुल्तान के साथ मिसबिहेव किया जाता है। इसके अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाती है और वो एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट। और इसीलिए महात्मा गांधी को एक टाइम और ये चांस मिल जाता है कि हिंदू और मुस्लिम जो डिसयूनिटी हुए थे उनको यूनिटाइड करने का, यानी उनको एक करने का। इसलिए नया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर जॉइन टुगेदर, एंड दैट्स वाई दिस मूवमेंट कॉल्ड द ऑल्सो खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। द खिलाफत मूवमेंट इज द फर्स्ट मासेस मूवमेंट in Indian history under the leadership of Mahatma Gandhi. The method of the non-cooperation method: first, people were asked to return honorary titles. The boycott the British good school and the institution run by them. They boycotted legislature. यानी महात्मा गांधी ने एक तरह से लोगों को सजेस्ट किया तो सबसे पहले जो लोगों ने अपने टाइटल्स यानी टाइटल्स को एक तरह से वापस करते, साथ साथ जो ब्रिटिश गुड्स हैं यानी ब्रिटिश से बने हुए जो भी सामान है उसको वो बॉयकट करें। जैसे आज के दौर में मेड इन चाइना के बॉयकट को हम लोग बात करते हैं, सेम ऐसे ही स्कूल इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश से गवर्नमेंट चला रही है उसका बॉयकट किया जाए। बॉयकट ऑफ द लेजिस्लेचर यानी उस समय के जो लेजिस्लेचर थे यानी विधायिका थी उसका भी बॉयकट किया जाए। Then people supported to Mahatma Gandhi responded his call. The several Indians, whether were clerk, teacher, lawyer, artisan, suspended their work. The student boycotted their classes. Various national universities were established like Jamia Millia Islamia and Kasi Vidyapeeth. Lawyer gave their practice. People made bonfire of the foreign cloth. यानी देखा जाए तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ज्वाइन करते हैं, महात्मा गांधी का सपोर्ट करते हैं और उनके कहने पर वो बॉयकट भी करते हैं। जैसे कि टीचर, क्लर्क, लॉयर, आर्टिशियन ये एक तरह से अपने काम रोक देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जॉब से रिजाइन दे देते हैं। साथ साथ स्टूडेंट बॉयकट करते हैं जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट इंडियन जो होते हैं अपने यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया एंड काशी विद्यापीठ। लॉयर गेव देयर पेस्टेड यानी कोर्ट में जो लॉयर थे जो वो भी अपने प्रैक्टिस स्टॉप कर देते हैं। बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ यानी जो मेड इन इंग्लैंड होता है उनके सामानों को जलाया जाता है। पीपुल जॉइन द मूवमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन यानी लोग अपने रिलीजन से ऊपर उठकर एक तरह से इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। बट सडनली ये मूवमेंट इंसिडेंट हैपेंड इन चौरी चौरा नियर उत्तर प्रदेश in 1922. This movement was the great success, but Gandhi ji had to call up movement in 1922. He had asked the people to follow the policy of non-violence, but unfortunately a violent incident occurred in Chauri Chaura where police opened the fire and their peasants set the police station on fire which killed 22 पुलिसमैन। और इस जो मूवमेंट था एक तरह से बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा था, सक्सेसफुली ग्रो कर रहा था, बट इसी समय एक इंसिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे एक तरह से नॉन वायलेंस की बात करते थे, पर ये मूवमेंट वायलेंट हो जाता है और फरवरी 1922 में चौरी चौरा के पास एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि
लोग जो थे, जो मूवमेंट जो कर रहे थे, वो एक तरह से 22 पुलिसमैन को जिंदा जला देते हैं और इस इंसिडेंट से महात्मा गांधी जो है मूवमेंट को कॉल बैक कर लेते हैं, यानी स्टॉप कर देते हैं. After this incident, Mahatma Gandhi shocked and call of the movement. The government took advantage of the situation and arrested Gandhiji and he remained in prison for 6 years. और इसके बाद महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और 6 years के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है. Then student, the first masses movement, non-cooperation movement failed, but this is not stopped and the another movement also started by Mahatma Gandhi. Then is the next video we discuss about this. In today's video also we discuss about the exercise portion. Exercise portion means the true false filling in the blanks. I hope so completed. Today we discuss about the very short question answer. With this video also I send a PDF for short question answer, then complete and submit on time. Then thank you.